Hello student, welcome to my channel VK Boys. So today we are going to discuss chapter number 2, motion in one dimension. So the first topic of this chapter is scalar and vector quantities. Now what is scalar quantity? What is vector quantity? Scalar is nothing, any physical quantity which has only magnitude, which has only a numerical value. That is known as scalar quantity. For example, you are having mass, you are having temperature. All these quantities are scalar quantities because they are having only magnitude. But there are certain quantities which are having magnitude and direction as well. For example, if I say that I have applied some force, so you will ask in which direction? So direction is associated with the force. Otherwise, the force is meaningless. So direction is also required. So there are some quantities which can be expressed completely if you know the magnitude and direction of those quantities. And those quantities are known as vector quantities. What are the examples? Example is like acceleration is there, velocity is there, force is there, displacement is there. So many quantities are there which are vector quantities. Now vector quantities are represented by putting a arrow on it. For example, if I have to write force, I will put a arrow on it. It will indicate, if you see arrow on any physical quantity, it will tell you that this physical quantity is a vector quantity. So this is about scalar quantity and vector quantity. Next thing which we are going to discuss is what is rest and what is motion. Rest किसे कहते हैं, motion किसे कहते हैं. यदि कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज ना करे with respect to its immediate surrounding, then we will say that this body is at rest. And if it change its position with respect to the surrounding, then we will say that this body is in motion. For example, ये मेरा बोर्ड है, यहाँ पर बोर्ड जो है मेरे रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा, इसलिए मैं बोलूंगा कि बोर्ड रेस्ट पे है. और यदि थोड़ी देर बाद बोर्ड मुझे वहां नजर आए, ये मेरे मुकाबले में पोजीशन को चेंज कर ले, तो क्या मैं बोलूंगा कि ये मूव कर रहा है. तो रेस्ट और मोशन जो है इस बात के ऊपर डिपेंड करता है. दूसरी बात आपने जो याद रखनी है वो ये कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स. ये रिलेटिव टर्म है. फॉर एग्जाम्पल, यदि आप रेलवे ट्रैक के ऊपर बैठे हुए और सामने किसी ट्री को देख रहे हो तो आपको लगे, आप कहोगे कि ट्री जो है वो रेस्ट पे है. लेकिन यदि आप ट्रेन में बैठे हो और उसी ट्री को देखो तो आप देखोगे कि ट्री इज मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. सो व्हाई इट इज देयर? बिकॉज in first case the tree was not changing its position with respect to you, but in the second case it is you are changing your position with respect to the tree, so it appear as if the tree is moving. So rest and position depend upon the immediate surrounding. If there is a change in position with respect to the immediate surrounding, then the body will be in motion, otherwise it is at रेस्ट. तो ये चीज आपने याद रखनी है कि ये रिलेटिव टर्म है, कोई फिक्स नहीं है. फॉर एग्जांपल, अभी आप मुझसे यदि आप कैमरे में देख रहे हो तो आपको लगेगा कि विनोद सर कैमरे में रेस्ट पर है, लेकिन आप इसे थोड़ा वाइड तरीके से सोचोगे तो आपको पता है मैं अर्थ पर हूं और अर्थ स्टेशनरी नहीं है. अर्थ जो है अपनी एक्सिस की अलोंग रोटेट कर रही है. मैं अर्थ से ऊपर नहीं हूं, तो अर्थ के साथ मैं भी घूम रहा हूं. आई एम ऑल्सो इन मोशन. सिमिलरली इट इज मूविंग अराउंड द सन. सो Earth is moving, I am also on the earth. So with respect to the sun, I am moving. With respect to, but otherwise with respect to this camera is fixed, my position is also fixed. So I am at rest. So keep it in mind that this is a relative term. I suppose this concept is clear to you. Rest और motion को हमने डिस्कस कर लिया. अब हम डिस्कस करेंगे कि मोशन इन वन डायमेंशन का क्या मतलब है. मोशन इन वन डायमेंशन का मतलब है कि बॉडी जो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है. अब आपको पता है जब आप पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हो तो 3 कोऑर्डिनेट्स आप लेकर चलते हो, एक्स, वाई एंड जेड. बॉडी की पोजीशन एक ही कोऑर्डिनेट के अक्रॉस चेंज होनी चाहिए, चाहे वो वाई एक्सिस के लॉन्ग मूव करे स्ट्रेट लाइन में, चाहे वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव करे, चाहे वो जेड एक्सिस के लॉन्ग मूव करे. द चेंज शुड बी इन वन डायरेक्शन. द चेंज ऑफ पोजीशन शुड बी इन वन डायरेक्शन. दैट इज नोन एज मोशन इन वन dimension.
एंड 2 डायमेंशन में क्या होगा, 2 डायरेक्शन में बॉडी अपने पोजीशन चेंज करे। फॉर एग्जांपल जब आप कैरम बोर्ड खेलते हो तो कैरम बोर्ड में क्या होता है, आपका जो भी आपकी स्ट्राइकर्स है वो कभी इस तरह भी मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। दैट मीन इट कैन मूव अलोंग वाई एक्सिस, इट कैन मूव अलोंग एक्स एक्सिस एज वेल। सो द चेंज मे बी अलोंग एक्स एक्सिस एंड चेंज मे बी अलोंग वाई एक्सिस। So in the both positions the change is being taking place. So that is a example of second motion in 2 dimension. And then next is 3 dimension motion of a suppose bird is there, one bird is flying in the sky, so it can move in the z direction as well. It can move up, it can move down, left, right, and so in all the 3 coordinates there is a change. So whenever the body is in a space, then it can occupy all the 3 coordinates. So change may be taking place in the 3 coordinates. So that is known as motion in 3 dimension. Now the question is how you will represent the motion in a 1 dimension. So for representing the motion in the 1 dimension, what you will do, you will just write one side, you will write x-axis, position, and then time. One side you will be writing, for example, suppose when the time was 0, position was 0, and so on. So you can change the position as the time is changing, the position will also change, but the change of the position will only along one axis. I am taking over here x axis, but you can take y, z, and so only one axis. That will be motion in 1 dimension. Now next thing is what is distance and what is displacement. Distance and displacement, I am telling you what is distance and displacement. Now suppose the body is moving from one point to another point like this. A body is moving from point A to point B like this, as I have shown in the diagram. Now the total path, the actual path covered between these 2 points, रेड लाइन से जिसे मैंने मार्क किया, ये जो एक्चुअल पाथ है बॉडी का, द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी बिटवीन द 2 पॉइंट्स इज नोन एज डिस्टेंस. इसको आपने बोलना है डिस्टेंस. और दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या है, बॉडी ए से चली और बी तक पहुंची, हमने एक्चुअल डिस्टेंस नहीं देखना, हमने देखना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है. ये स्ट्रेट लाइन shortest distance between the 2 points in a particular direction. Shortest distance between the 2 points in a particular direction is known as displacement. So आपने यदि सिंपल वे में याद रखना हो तो डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ लेंथ, एक्चुअल पाथ, एंड डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, शॉर्टेस्ट पाथ. एक चीज और इसके साथ याद रखनी है, शॉर्टेस्ट पाथ तो है ही, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी है, इन पर्टिकुलर डायरेक्शन. इसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. मुझे लगता है ये बात आपको समझ आ गई होगी. एक बात और याद रखनी है कि ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है. दोनों के ही एसआई यूनिट जो हैं वो मीटर हैं, चाहे वो डिस्टेंस हो चाहे वो डिस्प्लेसमेंट हो, और सीजीएस यूनिट जो हैं वो इनके सेंटीमीटर हैं. अब क्वेश्चन उठता है कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं. तो पहला डिफरेंस तो इनकी डेफिनेशन ही आप ले सकते हो. आप कह सकते हो कि भाई डिस्टेंस जो है वो एक्चुअल पाथ लेंथ है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ है. तो फर्स्ट डिफरेंस इज दिस. और जो सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि डिस्टेंस जो है आपका वो पर्टिकुलर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है उसमें. दैट मीन इट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी बात आपने याद रखनी है. और दूसरी बात ये याद रखनी है, जब कोई बॉडी मूव करती है तो उस केस में जो डिस्टेंस होता है उसकी पोजीशन आपने याद रखनी है. डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट. डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो ज्यादा होगा या उसके बराबर होगा, कम कभी नहीं होगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में उल्टा होता है. डिस्प्लेसमेंट में
ये वाला साइन लगाएंगे आप कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। तो ये भी बात आपने याद रखनी है। ये जो आपका डिस्टेंस है शॉर्टेस्ट, ये जो आपका डिस्टेंस है ये जो है आपका 0 नहीं होगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें जो आपको याद रखनी चाहिए। कई बार बहुत इनडायरेक्ट वे में हम कोई बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं लाइक दैट कि सपोज करो कि बॉडी मूव कर रही है इन ए सर्कल, ठीक है, और वो बॉडी ट्रेवल करती है ए से बी तक का डिस्टेंस। तो आप और बॉडी, ये जो सर्कल है इसकी रेडियस मान लो r है। आपसे पूछा जाए कि भाई ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस कितना हुआ, तो आपने ये पूरी डिस्टेंस, ये पूरा लेंथ बतानी है, एक्चुअल पाथ बताना है। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ, दिस एक्चुअल पाथ। तो आपको पता है ये पूरा डिस्टेंस होता तो ये सरकमफ्रेंस होती, और सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2 पाई r, लेकिन ये सरकमफ्रेंस का हाफ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा 2 पाई r बाई 2, दैट मीन पाई r। तो यहां पर डिस्टेंस कितना हो गया हमारे पास पाई r। और यदि मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। शॉर्टेस्ट लेना है हमने, लॉन्गेस्ट ये नहीं जाना, एक्चुअल नहीं जाना, आपने शॉर्टेस्ट जाना है, यहां से लेकर यहां तक, ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस। तो r यहां आ गया, r यहां आ गया, r प्लस r 2r। तो यहां पर डिस्टेंस तो हो गया पाई r, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 2r के बराबर। सिमिलरली यदि बॉडी ए से चलकर फिर दोबारा ए पर ही आ जाए तो उसका जो उसकी जो डिस्टेंस होगा वो तो हो जाएगा 2 पाई r यानी कि सरकमफ्रेंस के बराबर। लेकिन यदि बॉडी ए से चलकर फिर ए के पास ही आ गई, अब वो पहले जहां थी वहीं आ गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया दोनों पॉइंट्स के बीच में, जहां थी वहीं है, कुछ डिस्टेंस ही नहीं है, कुछ पाथ लेंथ बची ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई 0। तो जब बॉडी एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होती है 0, लेकिन डिस्टेंस होता है 2 पाई r। अब आप यहां देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट 0 है लेकिन डिस्टेंस इज नॉट 0। तो ये भी एक डिफरेंस है कि डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकती है, डिस्टेंस 0 नहीं होगा। ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है, और इस टाइप से भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब भी कोई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, आपने एक चीज याद रखनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है, और एक्चुअल डिस्टेंस, एक्चुअल पाथ लेंथ, दैट इज अ डिस्टेंस। तो एक्चुअल और शॉर्टेस्ट देखकर आप वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे ट्रायंगल का एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। सपोज करो एक बॉडी ए से बी तक जाती है, बी से फिर सी पर आ जाती है, और सी से फिर ए पर आ जाती है। बॉडी ए से चली और ए पर ही पहुंच गई, और उसने डिस्टेंस ऐसे ट्रेवल किया, ए टू बी, बी टू सी, सी टू ए अगेन, लाइक दैट। इस तरह से उसने बॉडी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया। मान लो ये जो पाथ है वो 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यानी कि 5 प्लस 5 प्लस 5, दैट मीन 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस हो गया। लेकिन व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, बॉडी जहां थी वहीं पहुंच गई, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो गया 0। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट तो 15 सेंटीमीटर है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो 15 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस, सॉरी डिस्प्लेसमेंट मैंने लिख दिया डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 के बराबर होगी। एक तो आपको बात ये याद रखनी है। यदि ये चीज समझ आ गई तो नेक्स्ट चीज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है, उसी तरह से स्पीड और वेलोसिटी है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्पीड कहते किसे हैं। स्पीड जो है, स्पीड इज डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज नोन एज स्पीड। और वेलोसिटी किसे कहते हैं, वेलोसिटी में बस इतना ही फर्क है, हमने डिस्प्लेसमेंट लिखना है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इज वेलोसिटी। एक और चीज याद रखनी है, क्योंकि डिस्टेंस आपको थोड़ी देर पहले बता के हटाऊं स्केलर है और टाइम भी स्केलर है, तो ये आपकी स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन जो वेलोसिटी है
क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी ही है। तो वेलोसिटी जब भी आप लिखेंगे उसके ऊपर एक एरो जरूर, वी साइन के ऊपर आप एरो जरूर लिखेंगे, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये हो गया आपका। अब ये जो स्पीड है वो बहुत तरीके की हो सकती है, वो यूनिफॉर्म भी स्पीड हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है, इनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है? यूनी मतलब यूनी स्टैंड फॉर, अन स्टैंड फॉर वन, और इक्वल। सो हियर व्हाट इज इक्वल in uniform speed? What is equal? Equal distance, equal time. If both the things are equal, that means if a body covers equal distance in equal interval of time, then its speed is said to be uniform. Its speed will be uniform. If a body covers equal distance in equal interval of time, then its speed is a uniform speed. Similarly, here also, if a body covers equal displacement in equal interval of time, then velocity will be uniform velocity. The next thing is non-uniform. Non-uniform speed. What is non-uniform? In non-uniform, what you will do? आपने सिंपल क्या करना है, एक चीज तो इक्वल रहेगी, दूसरा अनइक्वल हो जाएगा. इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल, एक चीज अनइक्वल रहेगी, अनइक्वल distance in equal interval of time, then the speed of the body is said to be a non-uniform speed or variable speed. ये बात आपने याद रखनी है. ये हो गया हमारा वेरिएबल स्पीड का. उसके बाद जो स्पीड आती है हमारे पास वो आती है यूनिफॉर्म हो गई, इसके बाद हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो गई. नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस. Instantaneous speed. What is instantaneous? Instant, at a particular instant of time, the distance traveled by a body at a particular instant of time, or you can say at a very short time, distance covered in a very short time is known as instantaneous speed. Time approaches to zero, not equal to zero, I am telling you. So instantaneous speed. After instantaneous speed you are having average speed. एवरेज स्पीड में हम क्या करते हैं, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस ले लेते हैं और टोटल टाइम लेते हैं. टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इज नोन एज एवरेज स्पीड. वेलोसिटी के ऊपर भी ये सारी ही चीजें इंप्लीमेंट होती हैं. वेलोसिटी भी आपको यूनिफॉर्म भी मिलेगी, इंस्टेंटेनियस भी मिलेगी और एवरेज भी वेलोसिटी मिलेगी. बस ओनली चेंज आपको क्या करना है, जहां भी स्पीड के केस में आपने डिस्टेंस लिखा था, यहां हर जगह आपने डिस्प्लेसमेंट वर्ड का यूज करना है. तो इसके साथ ही आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा. नेक्स्ट आता है कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है. जो डिफरेंस डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में है वही डिफरेंस जो है वेलोसिटी और स्पीड में भी है लगभग. कैसे? जैसे आपने पहले देखा, पहले तो डेफिनेशन ही आ जाएगी. डेफिनेशन में आप बोल दोगे कि स्पीड किसे कहते हैं, स्पीड तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम है. वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम. सो फर्स्ट डिफरेंस ये हो गया. यूनिट दोनों की सेम है तो ये तो सिमिलैरिटी हो गई. नेक्स्ट आता है स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है. दूसरा डिफरेंस हो गया आपके पास. ये सेकंड डिफरेंस आपने देख लिया. तो सेकंड डिफरेंस के बाद बहुत सारे डिफरेंसेस हैं वेलोसिटी के अंदर और स्पीड के अंदर, वो मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा देता हूं. आपको ये डिफरेंसेस याद रखने चाहिए. तो स्टूडेंट्स आपने ये सारी चीजें देख ली हैं, डिफरेंसेस आपको पता चल गए हैं. क्योंकि मेरा वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, अपलोड करने में मुझे प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं कंक्लूड करूंगा. इसका अगला पार्ट इसके तुरंत बाद ही मैं बनाना शुरू करूंगा. तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप रिवाइज कर पाओगे इजीली. काफ़ी कम टाइम में आपकी रिवीजन थोड़ा जल्दी हो जाएगी. तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा. तो पहला काम आपने यही करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आपको जल्दी जैसे जैसे मैं वीडियो बनाऊं उसी वक्त आपको जो है वो वीडियो का मैसेज मिल जाए और आपकी स्टडी अफेक्ट ना हो. Thank you for watching my channel BK Voice.